Good morning, student. Welcome you all. So, hope you all are very great. So, today I'm going to start a very new chapter from the book Moments. That is chapter number 10. The title as The Bagger, written by Anton Chekhov. So, as the title says, The Bagger. So, basically, we are going to discuss the bagger. The bagger means who bagging something all the time. Sometimes they are very needy person, sometimes they are not. But in this chapter the writer says how the bagger change himself into a very good person. So basically this is a story of a bagger that he changed himself into a very good person by the help of some good persons. So let's start. So this is the very first paragraph of this particular chapter. What induced the beggar Luskov to change his ways? Let's read and find out. So here the word induce means the ways. How the beggar change their ways to change his own life. Okay, so let's read. Kind sir, have pity, turn your attention to a poor, hungry man. For 3 days I have had nothing to eat. I haven't 5 kopecks for a lodging. So basically, that you all have must heard about these kind of lines in your daily routine, or maybe whenever you go out with your friends, with your relatives, or with someone else, or your dear or near ones. So basically, some poor person or needy person हमेशा बोलते हैं सब प्लीज़ थोड़ी हम पे दया दिखाइए, हमारे पे ध्यान दीजिए, वी आर वेरी पुअर पर्सन, वी आर वेरी हंग्री पर्सन, 3 दिन से कुछ खाए नहीं. तो बेसिकली these lines describe the same thing. सो नॉर्मली यहाँ पर भी यही लाइंस कह रहे हैं जो बैगर हैं यहाँ पर, कि उन्होंने 3 दिन से कुछ खाना नहीं खाया है एंड आई हैवन 5 kopecks फॉर अ लॉन्चकिंग्स. सो बेसिकली क्या होता है, कोपैक्स का मतलब करेंसी है, मॉनिटरी है. जैसे हम यहाँ पे रुपए बोलते हैं तो कोपैक्स मीन्स रशियन कॉइन इक्वल टू द 100 ऑफ अ रबल. ऑल राइट. सो लॉडगिंग मीन्स होता है टेम्प्रेरी अकोमोडेशन. टेम्प्रेरी अकोमोडेशन होता है, अकोमोडेशन आप लोग समझते होंगे कि सपोज हम कहीं बाहर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, ठीक है, और सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे को एक परफेक्ट अकोमोडेशन मिले, यानी रहने के लिए कोई जगह मिले, मे बी 1 BHK 2 BHK, सम गुड अपार्टमेंट. All right, so that is a lodgings. So I swear it before God. So दे वर लाइक इनकी हाइट्स होती है कि हमेशा गॉड की स्वेर तो हमेशा रहती है इनके मुंह पर, कि गॉड की स्वेर बोलते हैं कि हम गॉड की कसम खाते हैं कि वी हैड नथिंग टू ईट, वी हैवेंट दिस थिंग और दैट थिंग. सो दीज आर द वेरी नॉर्मल थिंग्स, ये जो अपनी डेली रूटीन्स में अप्लाई करते हैं. So for 8 years, I was a village school teacher, and then I lost my place through intrigues. I fell a victim of calumny. So basically, he just describe his life कि वो पहले कैसा था कि और अब वो जो beggar है वो कैसे बन गया, मीन्स बैगिंग क्यों उसने स्टार्ट कर दी. तो बेसिकली ही सेड कि वो पहले एक स्कूल टीचर था एक विलेज में, और इंट्रीग्स होते हैं कॉन्स्पायर मीन्स व्हेन समवन चीटेड विद यू. सो बेसिकली इनके साथ किसी ने चीटिंग करी थी, और दैट्स वाई ये प्रोफेशन में वो आ गए. प्रोफेशन तो नहीं होगा बट स्टिल हमें कहना पड़ रहा है यहाँ पे. सो आई फेल अ विक्टिम टू कॉलमनी. कॉलमनी होता है द मेकिंग ऑफ अ फॉल्स और डिफेमेटरी स्टेटमेंट अबाउट समवन इन ऑर्डर टू डैमेज हिज और हर रेपुटेशन. जब हम किसी की रेपुटेशन को डैमेज करते हैं ना, तो उसे हम कॉलमनी कहते हैं. तो कह रहे हैं कि मैं तो विक्टिम था और मेरी किसी ने रेपुटेशन को डैमेज करने का ट्राई किया, और इस वजह से इनको अपनी जॉब खोनी पड़ी. सो इट इज़ अ ईयर नाउ सिंस आई हैव हैड एनीथिंग टू do. So now he had nothing to do, so that's why he just kept this kind of profession. So the advocate. So at the starting means at the beginning of this chapter, there is only one character, that is the beggar, and his name is Luskov. So here's the another character, the advocate Sergei. So यहाँ पे 3 characters ही हमें देखने को मिलेंगे. First already हम देख चुके हैं, that is Luskov, who is the beggar, and this is the second character, that is Sergei, and who is
play here advocate role. All right, in this play. So look at the ragged, a fawn-colored overcoat of a suppliant, at his dull, drunken eyes, at the red spot on either cheek, and it seemed to him as if he had seen this man somewhere before. So Sergei ने उस person को देखा, means he looked at the beggar and he just talking himself कि इस person को, ये जो ragged person है, rag means जो मतलब जिसके कपड़े फटे हुए हैं और नॉट इन अ वेरी गुड कंडीशन, तो फॉन कलर इज मीन्स अ ब्राउन कलर, अ फीडेड कलर का उन्होंने ओवरकोट पहना है. ओवरकोट मीन्स जैसे आप ब्लेजर्स पहनते हैं, कोट्स पहनते हैं, तो नॉर्मली वो आपके वेस्ट साइज तक होता है. ओवरकोट होता है जो नी साइज तक होता है. इट्स कॉल्ड ओवरकोट बेसिकली. सो ऑफ अ सप्लिएंट at his dull drunken eyes, उनकी drunken eyes थी because he used to means he used to drink a lot, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे वो, basically a very alcohol person, alcohol consume करते थे. सो ऐसा लग रहा था कि जो एडवोकेट है सरजाए, उन्होंने उस पर्सन को कहीं देखा है बिकॉज उनके दोनों जो चीक्स थे वो भी रेड हो रहे थे ड्यू टू कंज्यूम अ लॉट ऑफ एल्कोहल. So I have now had an offer of a position in the province. Province means होता है state, right? State means राज्य. सो ऑफ कालुगा. तो कालुगा अब यहाँ पे वो अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं. मीन्स जो बैगर हैं, लस्कॉफ हैं, ही जस्ट कंटिन्यू हिज ओन स्टोरी एंड ही सेट कि उन्हें एक प्रोविंस यानी एक स्टेट से, कैलुगा स्टेट से उनको एक ऑफर था. एंड द मेडिकेंट होता है बैगर. So went on. So he wants to went on that state. So but I haven't the money to get there. So he hasn't any money to get there. वहाँ जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे. So help me kindly. I am ashamed to ask, but I am obliged to by circumstances. So basically कहते हैं कि मैं काइंडली वहाँ जाना चाहता हूँ, बट आई फील वेरी ashamed to ask. मुझे बहुत शर्म आ रही है बोलने में कि मैं जस्ट आई एम वेरी फोर्सफुली, आई एम वेरी कंपेल्ड टू बाय सर्कमस्टेंसेस, यानी मुझे बहुत फोर्सफुली मैं बंधा हुआ किससे, मेरे सर्कमस्टेंसेस से, मेरी प्रॉब्लम से. सर्जाइज आइज फेल ऑन द मैन्स ओवर शूज, वन ऑफ विच वॉज हाई एंड द अदर लो. सो सडनली सर्जाइज की आय कहाँ जाती है, उनके जूतों पर जाती है. जो एक जूता तो थोड़ा ऊंचा था और एक जूता थोड़ा नीचा था. एंड ही सडनली रिमेंबर्ड समथिंग, और सडनली ही रिमेंबर्ड समथिंग. व्हाट वाज दैट? लेट्स सी. Look here, it seems to me I met you the day before yesterday in Sadovya Street, he said. तो he said to the beggar कि hey person कि मैंने hey man कि I met you yesterday, means I met you yesterday, a day before yesterday, मतलब परसों के दिन मैं तुमसे मिला था in Savodya Street पर. But you told me then that you were a student who had been expelled and not a village school teacher. तो that day तुमने मुझे कहा था कि तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया था, तुम विलेज स्कूल टीचर नहीं हो. डू यू रिमेंबर दिस थिंग? देन ही वॉज जस्ट कहते हैं ना, वो डर जाता है एंड ही वॉज confused that time and वो mumbled करना स्टार्ट कर देता है. and he said no that can't be so, mumbled the beggar, taken aback means shocked. He was very shocked that I am a village school teacher and if you like I can show you my papers. So now as a proof वो कह रहा है no I am a school teacher and if you want, so means वो सर्जा से कहता है कि if you want or if you like that I can show you my all the documents and पेपर्स. तो वो प्रूफ देने के, सो ही ऑल्सो गिव अ प्रूफ कि वो स्कूल टीचर ही था. सो ही हैव डन विथ लाइन you called yourself a student and even told me what you had been expelled for. Don't you remember? Now in this point Sergei said कि please done with your lying. You बहुत ज़्यादा झूठ तुम बोल चुके हो क्योंकि तुमको एक स्टूडेंट बता रहे थे. now you tell me something different story, और you told me even कि तुम्हें क्यों स्कूल से निकाला था कि तुम्हें याद नहीं. Don't you remember this thing? Sergei flushed and turned from the rat creature with an expression of disgust. So Sergei को गुस्सा आ रहा था और वो बस गुस्से में just move away. This is dishonesty, my dear sir, he cried angrily. This is
स्विडलिंग. सो नाउ वो कहता है इस मोमेंट पर कि सर ये डिसऑनेस्टी है सर, आप जो कर रहे हैं, आप यहाँ से छोड़कर जा रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड अ डिसऑनेस्टी. सो ऑन दिस पॉइंट यहाँ पे जो सर्जा है वो कहते हैं नो डियर, इट्स नॉट अ डिसऑनेस्टी, इट्स अ स्विडलिंग. सो हियर द वर्ड स्विडलिंग मीन्स होता है चीटिंग ऑफ पर्सन, चीटिंग अ पर्सन ऑफ मनी, किसी पर्सन से चीटिंग करना, किसके लिए, मनी के लिए, पैसों के लिए, तो उसे हमें स्विडलिंग कहा गया है. आई हैव नॉट मेंशन हेयर, इसलिए थोड़ा सा आप प्लीज नोट इट डाउन इन योर रफ कॉपीज और इन नोटबुक्स कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्विडलिंग. व्हेन यू see your notebooks at the back side also they are given swiddling meaning. So I shall send the police for you, damn you. So then he called him कि मैं तुम्हारे लिए पुलिस भिजवा दूंगा इसके लिए. So sir, he said laying his hand on his heart, the fact is I was लाइन. सो वो अब पुलिस का नाम सुनते ही वो डर जाता है, बोलता है सर प्लीज़ मैं झूठ बोला था, आई एम नीदर अ स्टूडेंट नॉर अ स्कूल टीचर, ना तो मैं स्कूल टीचर हूँ ना मैं स्टूडेंट हूँ. ऑल दैट वॉज फिक्शन मीन्स ऑल दैट वॉज फॉल्सहुड, ऑल दैट वॉज इमेजिनरी. मैं सब कुछ क्या बोल रहा था, झूठ बोल रहा था. फॉर्मली आई सैंग इन अ रशियन कोयर. रशियन कोयर मतलब एक ग्रुप होता है सिंगर्स का, मतलब मैं रशियन कोयर के लिए गाता था. एंड वॉज सेंट अवे फॉर ड्रंकनेस, और उन्होंने मुझे निकाल दिया जस्ट बिकॉज ऑफ माई बैड हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग, मतलब मैं बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना था एल्कोहल. सो बट वॉट एल्स कैन आई डू, बट इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ. आई कान गेट अलॉन्ग विदाउट लाइंग, नो वन विल गिव मी एनीथिंग व्हेन आई टेल द ट्रूथ, व्हाट कैन आई डू. तो ही सेड कि सर इफ़ आई टेल द ट्रूथ to everyone that nobody would give me anything, मतलब nobody will give me anything, कोई भी मुझे कुछ नहीं देता if I tell them tell the truth to them. What can you do? You ask what you can do, cried Sajai. So at this point the Sajai was very angry and he cried to him कि what can you, तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें मुझसे पूछ रहे हो. Coming close to him, उसके पास जाता है and he said work, that's what you can do, तुम काम कर सकते हो and you must work. Work, yes I know that myself, but where can I find work? तो he said yes I know myself, मैं जानता हूँ, but मैं मुझे कहाँ पे काम मिल सकता है, मैं कहाँ ढूंढूंगा काम. So how would you like to chop wood for me? So here Sajai said कि would you like to chop a wood for me, wood means लकड़ी, मेरे लिए क्या तुम काटना पसंद करोगे. So here Laskov means who is beggar. I wouldn't refuse to do that, but in these days even skilled woodcutters find themselves sitting without bread. So here the Laskov said कि मैं refuse नहीं कर रहा हूँ, I love to do this work, but in these days जो skilled woodcutters हैं वो भी without bread बैठे हैं, even they don't have any work to do. So will you come and chop wood for me? So here Sergey said कि this is a very bullshit line कि अगर मैं तुम्हें काम दे रहा हूँ तो तुम काम लो ना, तुम ये क्यों कह रहे हो कि जो प्रॉपर स्किल्ड वुड कटर्स हैं उनको भी काम नहीं मिल रहा है. Okay, if they don't have any work but still I'll give you some work, तो तुम उसको रिफ्यूज नहीं कर सकते हो. तो वो गुस्से में बोलते हैं कि just tell me yes or no. So he said कि yes sir I will, very well we will soon find out. So he said कि ठीक है हमको पता चल जाएगा कि actually तुम काम करना चाहते भी हो या नहीं. Sajai hesitant along, rubbing his hands, he called his cook out of the kitchen. सजा उसके साथ जाते हैं. ही वॉज रबिंग हिज हैंड और ही कॉल्ड हिज कुक here Olga. So her cook name, his cook name is, means Sajai cook name is Olga. Olga is a lady. He said take the gentleman into the woodshed and let him chop the wood. तो उन्होंने कहा कि इस जेंटलमैन को कहाँ लेके जाओ, वुड तक लेके जाओ और उसको क्या बताओ, वुड काटने के काम दे दो. The scarecrow. See, the scarecrow means होता है जब an object usually suggesting a human figure that is set up to the frightened birds away from the crops. जब एक खेतों में वो एक ह्यूमन फिगर का कुछ स्केलेटन टाइप लगाते हैं ना, उसको स्कैरक्रो कहते हैं, डराने के लिए बेसिकली बर्ड्स को जो खेतों में नहीं आए. तो ही सेड कि द स्कैरक्रो ऑफ अ बैगर श्रग्ड हिज शोल्डर, जो ही लुक्स लाइक अ स्कैरक्रो, ठीक है, और उसके वो ही जस्ट श्रग्ड हिज शोल्डर ऑल द टाइम एंड एज इफ इन परप्लेक्सिटी. परप्लेक्सिटी मीन्स होता है स्टेट, ये ओजी नहीं है यहाँ पे, आप परप्लेक्सिटी मीनिंग देखेंगे तो दिस इज नॉट अ ओजी, स्टेट ऑफ है, ओ एफ है, स्टेट ऑफ बीइंग पजल्ड.
सो वो कैसी एक पजल सिचुएशन में था, कंफ्यूज था एंड वेंट irresolutely means होता है hesitantly or undecidedly, because he was not decided yet and went after the cook, or he just follow the cook. It was obvious from his gait means होता है walk, that he had not consented to go and chop wood because he was hungry and wanted work. So now यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं था कि जो बैगर था उसने इसलिए काम को लिया है, इसलिए वुड कटिंग के लिए हाँ कर दी, दैट ही वॉज वेरी हंग्री और उसको काम करना था, बट सिंपली फ्रॉम प्राइड एंड शेम, बस प्राइड और शेम के लिए, क्योंकि उसको कहा था कि तुम काम नहीं करोगे तो तुम्हें ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो जस्ट बिकॉज ऑफ शेम ही इज डूइंग दीज काइंड ऑफ thing. So because he had been trapped by his own words, so that is the main reason he has been trapped by his own word. वो खुद के ही words में क्या हो गया था, फंस गया था, trapped हो गया था by his own words. So that is why he said yes to do these kind of words, mean to chop the wood. So it was obvious too that his strength had been undermined basically होता है weaken by vodka, and that he was unhealthy and did not feel the slightest inclination for toil. So that I told you at the beginning of this chapter that this person means the beggar was consume a lot of drink. So वो consume करता था, here the vodka is it's a kind of alcohol, एक drink का नाम है. So वो बहुत ज़्यादा used to हो चुका था इसके, that's why उनके पास बहुत strength नहीं थी, he was very feeble, he was very weak, so that he was unhealthy and did not feel the slightest inclination. So here the word inclination means ready to do anything, any kind of work. So that time he was not ready at all to do chop the wood, to means basically he is not able to cut the wood. For toil is hard work. Sajai hurried into the dining room. Dining room is basically hall or the dining area, or you can say the drawing room also. From its windows, one could see the woodshed and everything that went on in the yard. See, so now Sergei wants to see them. Means who is them here? Means the beggar and the Olga. Olga, who is Olga? Olga is the Sergei cook. So अब उन्होंने डाइनिंग रूम था, जैसे अगर आप अपने स्कूल आते हो तो स्कूल से जैसे आप रूम में बैठे हो तो थ्रू द विंडो यू कैन सी द होल गार्डन, राइट. तो ऐसे ही कुछ इन अ वेरी सिमिलर एक ड्राइंग रूम होता है सर्जाई का, उस ड्राइंग रूम से वो विंडो के थ्रू वो वुड शेड को ईजिली वॉच कर सकते थे, राइट. So standing at the window, he was standing at the window. Sajai saw the cook and the beggar came out into the yard by the back door and made their way across the dirty snow to the shed. So वो backyard से आए with the back means by the back door, और उन्होंने क्रॉस किया जो वो यार्ड बना हुआ था, जो already means because the winter season is was running that time, तो जो स्नो थी वो वहाँ पे फैली हुई थी, तो वो उससे कवर अप किया उन्होंने, उसको क्रॉस किया. ऑल्गा ग्लैड wrathfully मीन्स होता है व्हेन यू आर वेरी इन्फ्यूरिएटेड और बहुत हेट करते हो, विथ सम हेट्रेड मैनर. So at her companion. So who is companion here? Olga companion, the beggar. And who is the beggar? Beggar is Luskov. So वो Luskov को बिल्कुल पसंद नहीं कर रही थी. Shoved him aside. Shoved him aside का मतलब होता है pushed him. So he just pushed him with her elbow. अपनी elbow से उसको pushed कर दिए. Unlocked the shed. He just unlocked. जो shed होता है obviously garden type होगा. एक shed होता है जो पेड़ों का होता है. जैसे like मैं आपको कुछ draw करके बताती हूँ, ऐसे कुछ इस तरीके का होता है. एक ये देखोगे और फिर ये leaves से बना हुआ होता है, राइट. इसे हम कुछ शेड कहते हैं. काइंड ऑफ गार्डन भी आप समझ सकते हो. उसको शेड को अनलॉक करते, ऑब्वियस देयर इज अ डोर, दैट्स व्हाई शी अनलॉक द शेड एंड एंग्री बैंग द डोर. एंड एंग्रीली मतलब गुस्से में जस्ट शट द डोर, बंद कर देती है उस डोर को. नेक्स्ट ही सॉ द स्यूडो टीचर. So who is pseudo? What is the meaning of pseudo? Pseudo means a false teacher. Because starting में जो यहाँ पे हमारा बैगर था वो कहता था ना खुद को कि sometimes वो कहता था कि मैं विलेज टीचर हूँ, sometimes वो कहता था कि मैं स्टूडेंट हूँ. तो यहाँ पे जो सर्जाई वो कह रहे हैं कि वो जो pseudo टीचर था, जो false टीचर था, seated himself on a log and became lost in thought with his red cheeks resting on his feet.
बेसिकली वो क्या कर रहा था, लॉग होता है व्हेन वी कट डाउन सम ट्री, सो उसका एक जैसे मैं आपको बताती हूँ, इस तरीके का कुछ शेप होता है ऐसा, ठीक है। वो लॉग को लेकर बैठ जाता है और उस लॉग के साथ ही जस्ट अपने हैंड्स को पकड़ता है और चीक्स के ऊपर रखता है, अपने रेड चीज के ऊपर, एंड ही जस्ट लॉस्ट इन हिज ओन वर्ल्ड, वो अपने ही वर्ल्ड में खो जाता है। तो द विमेन फ्लंज, फ्लंज मीन्स थ्रो फोर्सफुली, किसी चीज को बहुत फोर्सफुली फेंकना, डाउन एन एक्स एट हिज फीट। तो बेसिकली जो पर्सन है, जो ओल्गा है, वो उस पर्सन को पसंद नहीं करती थी, बैगर को, तो गुस्से में उन्होंने उनकी फीट पर क्या फेंका, जो एक्स है, जो कुल्हाड़ी है, वो फेंक दी। स्पैट एंग्रली, सो स्पैट मीन्स द स्पीक एंग्रली, वो गुस्से में बोलती हैं, एंड जजिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ हर लिप्स begin to scold him. So from the window, Sergei was judging her कि how maybe she scalded on him, maybe वो उस पर चिल्ला रही होंगी, because वो उसके lips के expression से just imagine कर रहा था या idea लगा रहा था. So the beggar irresolutely pulled a billet. Billet means a thick piece of wood towards him. एक thick piece लेकर आती है उसके पास में and set it up between his feet. वो अपने पैरों के बीच में उसको रखता है, जो बैगर होता है, उस लॉक को, मतलब लकड़ी का एक गट्ठा सब कहते हो ना आप लोग, उसको उससे समझिए। वो उसको अपने दोनों पैरों के बीच में रखता है एंड टैप्ड इट फिबली। फिबली मीन्स होता है बहुत वीकन मैनर में, बहुत कमजोर, बिकॉज ही वॉज नॉट हेल्दी पर्सन विद द एक्स। तो अपने एक्स से उसको टैप करने की कोशिश करता है। टैप इज नॉट अ वेरी फोर्सफुली, बहुत फीबल मैनर में टैप करता है। एंड द बिलेट, और जो वो बिलेट होती है मीन्स जो लकड़ी का गट्ठा होता है, थिक पीस ऑफ वुड होता है, वेवर्ड एंड फेल डाउन, वेवर्ड होता है गिर जाता है। सो द बैगर अगेन पुल्ड इट टू हिम, blew on freezing hands and tapped it with the axe cautiously as if afraid of hitting. So he again tried, but again he was not successful because he was very afraid that his hitting the overshoes, कहीं उसके overshoes पे ना लग जाए, or the cutting of his finger, maybe वो अपनी finger को cut ना कर ले। The stick of wood again fell to the ground. So again वो जो wood होती है वो वापस ground में गिर जाती है। He was not successful at all. तो Sergei anger had vanished. तो what is the meaning of vanished here? Vanished means disappear, गायब हो जाना। सो वैनिश्ड का आप लोगों ने एड भी देखा होगा, दैट इज वो कहते हैं ना स्टेन कैसे गायब होता है, तो स्टेन का मतलब स्टेन वैनिश से गायब होगा, वैनिश मीन्स होता है डिसअपियर। सो एंड ही नाउ बिगिन टू फील अ लिटिल सॉरी एंड ashamed of himself of having set a spoiled, drunken, perhaps sick man to work at menial labor in coal. So he was now ashamed, he was realized that this is not a correct time for द बैगर, बिकॉज जो बैगर था वो अनफिट था फिजिकली और एज वेल एज मेंटली, और उसको इस तरह का मैनुअल वर्क देना, मैनुअल मतलब बहुत अनस्किल्ड पर्सन, एक लेबर वर्क देना, ये करेक्ट डिसीजन नहीं था। दैट्स वाई ही फेल्ट सॉरी एंड अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, हु Sergei. So an hour later, Olga came in and announced that the wood had all been chopped. So कुछ half an hour बाद Olga, who is the cook, वो आती हैं एंड अनाउंस करती हैं इन फ्रंट ऑफ द Sergei कि जो वुड है वो सब क्या हो चुकी है, चॉप हो चुकी है, कट हो चुकी है। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ द हाफ ऑफ द चैप्टर्स। आई होप यू ऑल have must understood very well. So thank you for watching this video.